Hello guys, welcome to my Agros channel. We were solving ICAR 2021 question paper and this is the second part of the questions paper. So let's continue our solving. तो आज का पहला क्वेश्चन है कि given below are two statements. Statement 1, the sun behaves as a black body. Statement 2, sun absorbs both all energy received and in turn radiates energy at the maximum rate possible for a given temperature. In light of the above statements, choose the correct answer for the options given below. Option number 1, both statement 1 and statement 2 are true. Option number 2, both statement 1 and statement 2 are false. Option number 3, statement 1 is true but statement 2 is false. Option number 4, statement 1 is false but statement 2 is true. Before answering this question, let's first see what is black body. Black body is an hypothetical perfect absorber plus perfect radiator of light. Okay, but remember, it cannot reflect light. Okay, so what are the examples of black body? Example of black body are all the planetary bodies. Planetary bodies means the earth, then the Jupiter, then the Mars, then the Neptune. Okay, and all the stars. All the stars includes the sun. Okay, so sun is a black body. Okay, sun भी एक black body है. So we can say it behaves as a black body and sun absorbs both energy. Okay, black body absorb भी करता है, perfect absorber है और प्लस perfect radiator भी है. तो वो absorb एनर्जी absorb भी कर सकता है और एनर्जी रेडिएट भी कर सकता है. क्योंकि सन एक ब्लैक बॉडी है तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 2 भी राइट है और स्टेटमेंट नंबर 1 भी राइट है. So we can say that option number 1, both statement 1 and statement 2 are true. And here remember, in black body it is said hypothetical. Hypothetical क्यों बोला जाता है? Hypothetical इसलिए बोला जाता है कि there is in reality, माने असल दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकता और ना ही परफेक्टली रेडिएट कर सकता है. मीन्स अगर 99.99% भी हो तो उसमें 0.01% का रहता है कि वो परफेक्टली अब्जॉर्व नहीं कर पा रहा है या फिर परफेक्टली रेडिएट नहीं कर पाता है. तो इसीलिए वी कैन से दैट इन रियल लाइफ देर इज नो ब्लैक बॉडी. ओके, तो ब्लैक बॉडी है यहाँ पर. ब्लैक बॉडी का हाइपोथेटिकल, व्हाट इज ब्लैक बॉडी? हाइपोथेटिकल परफेक्ट ऑब्जॉर्बर है एंड रेडिएटर ऑफ एनर्जी विथ नो रिफ्लेक्टिंग पावर. All the planets and the stars, including Earth and Sun, can be considered as black body. So let's move to the next question. The next question is showing depths of for maize and semi-dwarf wheat seeds are. ध्यान देना कि इसमें सेमी डॉर्फ लिखा हुआ है, व्हीट सीड्स नहीं बोला है यहाँ पर. सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ व्हीट सीड्स का बोला गया है. तो इसका करेक्ट आंसर है 3 to 5 सेंटीमीटर फॉर मेज and 5 to 6 centimeter for semi-dwarf wheat seeds. So my option 1 is right. So let's move to the next question. Next question ये है कि Indian Meteorological Department has been using long range or seasonal forecast for southwest monsoon rainfall. Means जून से सितंबर में जो मानसून होता है उस मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कौन से साल से लॉन्ग रेंज और सीजनल फोरकास्ट यूज करना चालू किया? तो उसका सही जवाब है 1886. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ बोरो एंड ऑस राइस इज कैरिड आउट ड्यूरिंग. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राइस का 3 टाइम होता है, सोइंग, बोरो, अमन एंड ऑस. ओके, so
ऑस जो होता है, ऑस हम लोग सो करते हैं अप्रैल टू मई में और हार्वेस्ट करते हैं सितंबर टू अक्टूबर में। अमन जो है, अमन को हम लोग जून से जुलाई में हम लोग सो करते हैं और हार्वेस्ट अक्टूबर टू नवंबर करते हैं। और बोरो जो है वो नवंबर टू दिसंबर हम लोग ये करते हैं, सो करते हैं, और हार्वेस्ट हम लोग मार्च और अप्रैल में करते हैं। सो इसके हिसाब से हम लोग का करेक्ट आंसर है समर एंड रबी। कैसे बोल सोच रहे होगे? यहाँ पर पूछा गया है बोरो और ऑस का, ठीक है। तो बोरो का हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं मार्च एंड अप्रैल। मार्च एंड अप्रैल में क्या आता है, हम लोग का समर सीजन आ जाता है, ठीक है। हम लोग बोरो को समर भी बोलते हैं, समर राइस में समर सोइंग या फिर समर राइस भी बोलते हैं बोरो को। समर सीजन आ जाता है। और ऑस के टाइम पे, ऑस राइस में सितंबर के टाइम पे हम लोग का रवि से मानसून रहता है, ठीक है। यहाँ तो होगा अगस्त जून जुलाई में आता है मानसून, और उस टाइम पे बारिश होता है, बारिश की वजह से रेनफॉल होता है। अब रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल के टाइम पे क्या हम लोग बोलते हैं, रवि सीजन होता है। तो हम लोग को सितंबर अक्टूबर क्या हो गया, मेरा रवि क्रॉप, ठीक है। अमन जो हो गया ये मेरा खारिफ या फिर ऑटम क्रॉप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये देखो अक्टूबर नवंबर में हम लोग हार्वेस्ट कर रहे हैं। अक्टूबर नवंबर में ठंडा आ जाता है। अक्टूबर नवंबर ठंडा आ जाने से हम लोग ठंडे के टाइम पे विंटर क्रॉप जो होता है मेरा, विंटर क्रॉप को क्या कहते हैं हम लोग, खरीफ कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राउन प्रॉन एरिया प्रोग्राम DPAP वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग, सबको पता है 1973 से 1974 है, पर क्वेश्चन में 90 ये ऑप्शन नहीं दिया गया था, तो इसका नियरेस्ट 1970 दिया है, तो यही करेक्ट आंसर होगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेरोफाइटिक वीड के लिए, सॉरी मैंने एक गलती कर दिया यहाँ पर, जो है अमन जो है वो ऑटम नहीं, हमारा ऑस को ऑटम बोलते हैं, सॉरी। हमारा ऑस, जो ऑस क्रॉप होता है उसको ऑटम क्रॉप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ज़ेरोफाइटिक वीड है, ओके। ज़ेरोफाइटिक वीड क्या होता है, जो ड्राउट रेजिस्टेंट होते हैं उनको ज़ेरोफाइटिक कहते हैं। तो ऐसा कौन सा वीट है जो ड्राउट रेजिस्टेंट है? अब इसमें से फाइलरिस माइनर को तो सबको जानते होंगे, ये हमारा कैनरी ग्रास है, या फिर वीड ऑफ वीट के से सबको जानते ही होंगे इसको, वीड ऑफ वीट बोल के। उसके सिवाय यहाँ पर हमारे और एक कॉमन चीज़ हम लोग देख सकते हैं, साइप्रस एरिया। इसको भी हम लोग राइस के वीड में हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं। इसके सिवा टाइफा डेफेंटिन, टाइफा हमारा जैसे पता होगा कि नेपियर ग्रास का जीनस है, टाइफा डेफेंटिया। नेपियर ग्रास नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एलिफेंट ग्रास। और प्लूचिया लैंसलेटा, प्लूचिया लैंसलेटा है हमारा रसना, ठीक है। ये एक नया वीड है जो हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स लोग नहीं पढ़े होंगे पहले। प्लूचिया लैंसलोटा, ये रसना का, इसको कॉमन नेम इसका रसना है, और ये इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ये एक ऐसा वीड है जिसका, जो हमारा ज़ेरोफाइटिक है विथ मेडिसिनल वैल्यू, इसीलिए इसको अभी एज अ क्रॉप भी ग्रो किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द वीड कंट्रोल एफिशिएंसी इफ द नंबर ऑफ वीड्स इन
chlordinafop treated plot is 190 meter square and that in a control plot is 361 per meter square. वीड कंट्रोल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? वीड कंट्रोल इन फील्ड, वीड इन कंट्रोल फील्ड माइनस वीड इन ट्रीटेड फील्ड बाय वीड इन कंट्रोल फील्ड इनटू 100. तो बस अप्लाई कर देना फॉर्मूला का. तो हम लगा वीड इन कंट्रोल फील्ड क्या है? वीड इन कंट्रोल फील्ड है हमारा 361 और वीड इन ट्रीटेड फील्ड क्या है 190 बाय वीड इन कंट्रोल प्लॉट कितना है 361. इन दोनों को सॉल्व करके मल्टीप्लाइड बाय 100. तो इसको सॉल्व करने के बाद आ रहा है हमारा 47.33%, यानी 30% आ रहा था, सॉरी. इसका मतलब मेरा 47.3 ऑप्शन राइट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is maximum solar energy is trapped by planting trees, cultivating crops, growing algae in tanks, growing grass. तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है, growing algae in tanks. Next question is how much photo period is required by long day plants. इसका आंसर सबको ही पता है. ऑप्शन नंबर 2 is right, greater than 14 hours. Okay. The last question is, if the water potential of pure water is equal to 0, what does it mean? Pure water जब बोल दे रहा है, pure water मतलब क्या है? Pure water होता है free of solute and free of gases. Okay. इसमें कुछ नहीं है इसमें. तो इसमें इसका जो कंडक्टेंस या फिर जिसमें जो बिजली पास होने का कैपेसिटी वो एकदम नहीं रहता है. इसका वाटर पोटेंशियल कुछ नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो इसमें क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या इसमें सॉल्यूट है? एकदम नहीं. वाटर कंटेंट सॉल्यूट्स एंड ग्लासेस? नहीं, एकदम नहीं. वाटर इज विदाउट सॉल्यूट्स? हाँ, ये सही है. वाटर विथ ऑर्गेनिक सुगर्स? अब सॉल्यूट ही नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ से ऑर्गेनिक सुगर्स रहेगा? तो ये भी ऑप्शन नहीं. नेक्स्ट है वाटर विथ इनऑर्गेनिक सुगर्स. अब इसमें सॉल्यूट नहीं है तो फिर से वही केस हो जा रहा है, सॉल्यूट नहीं है तो कुछ नहीं है. तो इसमें क्या हो रहा है, मेरा ऑप्शन नंबर सी राइट है. तो लास्ट ऑप्शन है मेरा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, मीन्स सी ओनली इज करेक्ट. Okay, thank you. That's all for today. We will meet in the next video with another 10 questions. Don't forget to subscribe and please like the video.